लेके आएगा प्रभु. And those who couldn't come because of they were ill, like Ekta, heal her stomach pain. And whoever, Father, thank you, Lord, for Nanda, she come, and may the others also come very soon, Father, Lord. आज सबके अंदर भूख और प्यास डाल दो प्रभु तेरे वचन सुनने में, क्योंकि तू जल्दी आने वाला है. और जो वचन के साथ चलते हैं, वचन का भूख है प्रभु, उस दिल को लौ को लंबे देश के घोड़े बनेंगे, अब तेरे साथ जाएंगे. And your presence will be surrounded. Bless Taradana, whose worship anointed from power from on high. We take authority and bind every power of darkness within without that comes against the worship and the word. And जो भी आने वाले जल्दी से जल्दी join करे प्रभु बड़ी आस के साथ to hear the message and to worship with you in Jesus' name. Amen. Come working properly first. People not. And it's so music. It's the same way. I think it's
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा जब है शांति करके को हम जब है एक पल से चर्चा No, they're suggesting without the mic. Without the mic? He's suggesting. Yeah, together. Just breathing. We are together again. In one accord. Something is happening. Something. So we are together again. Just we are together again. Just breathing. We are together again. In one. Something. Something. So we are together. So, you're with us in spirit. His heart's beating out. Hey, show me for Yogi. Yogi. Say to the You are the sun to be show me for you. We can't really be for before this to be. Seva
Just give us 5 minutes. We'll just realign the camera and everything. Okay. Abu, try without mind.
Just give us 2 minutes to realign everything. We'll start the word in 5 minutes.
Yes, namaste, Asha ji, Chawla ji. And I think this is Deepa, Power of Love. Khatun, my youngest daughter, Gupta ji, and Bhavna. Bhavna madam, Ahan. I want to see. इसका mic I want to see everybody, yeah? It went fast. Yes. And yeah, I'll just in a minute I'll catch up with everybody. Yeah. So everybody who joined in today. And yeah, thank you, Beta. This is very important for me. Ritu and Lucky and Rohit, Sangeeta, Nanda and Ekta and Namrata and yeah, jo baite hai Roshan, unki mummy and Nanda, Meera, Anishka, Alishka, Deepan, Nanda Gofne, both the Nanda Zahan, who helps me. And God bless him and all our precious people, Deepa, everyone who are there every day. Namaste. So glad to see all of you. Ritu, kaisi ho? How are you, Ritu? It didn't work with the job? Job ka kya ho gaya? Let me ask her only. Okay. Ask her only. Yeah. And Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. How are you doing? Yeah. Kya hua job ka? Good. जॉब का पास्टर 1 तारीख से ज्वाइनिंग है. Okay. ठीक है, we talk later. God bless. Good to see all of you. अभी हमने we had a lovely worship. हम प्रार्थना करेंगे कि कुछ वो सिस्टम वो भी है अच्छी तरह whatever टेक्निकली की अबू की वर्शिप सब तक पहुंचे. या जूम में कुछ हिंड्रेंस है कि जूम में you cannot present music. Something to do with the sound waves. I don't know technically. Flat or whatever. हम सिर्फ बोल सकते हैं जूम में. तो आप लोग मिलके प्रार्थना करते रिलीज द राइट साउंड सिस्टम लॉर्ड. हम मिलके प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रभु के राज्य में जो भी हिंड्रेंस बनता है वर्शिप के लिए, वर्शिप इज द हाईएस्ट, हमारी हाईएस्ट ड्यूटी, हमारी हाईएस्ट पैराडाइम है प्रभु के वर्शिप करने में. प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरी आराधना करो और मैंने तेरे रोटी और पानी पे आशीष डालूंगा, हर बीमारी तेरे से दूर रखूंगा और तेरे हाथों के कामों में बरकत दूंगा और तुम से कोई भी बांझ न रहेगा शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से. द मोस्ट पावरफुल थिंग इन अर्थ इज टू वर्शिप. Now worship is not just singing of songs, you know. People often think worship is just music. Music is one dimension of worship. हाँ, that's very important. हमारी मुंह से प्रभु हमारी आराधना, उनकी आराधना सुनना चाहते हैं. But worship is much beyond that. Worship is उनको सबसे ऊंचा स्थान अपनी जिंदगी में देना, प्रथम स्थान अपने कर्मों में, अपनी सोचों में, नियत में, हमारे पैसों से, शरीर से, हर चीज के. In everything he occupies center stage and we place him above everything else. When you honor him above everything else, that is true worship. और मैं हमेशा सिखाई हूं और समझती हूं कि ट्रू वर्शिप स्टार्ट्स व्हेन यू लीव द चर्च. जस्ट अब्बू के साथ जो भी गुड अनॉइंटेड वर्शिप के साथ वी ऑल गेट ब्लेस्ड. दैट्स अ ग्रेट थिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गाना गाए, वर्शिप करें म्यूजिक के साथ. दैट्स म्यूजिक एंड वर्शिप इज वन डायमेंशन, बट ट्रू वर्शिप इज, प्रभु ने क्या कहा, दीज पीपल वर्शिप मी विद देयर लिप्स, होठों से मेरी आराधना करते हैं, उनका दिल और उनका नियत में से दूर है. सो सच्ची वर्शिप बिगिंस जब हम अपनी वाकई जिंदगी में हम यीशु का स्थान कहाँ है. जब पैसा आता है, जब हमारे पहले सोच दशवांश और भेंट या अपने अपने कामों पे या अपनी प्रायोरिटीज. अगर आपका सोच पहला है कि दशवांश और भेंट हो, यू वर्शिपिंग हिम विथ योर मनी. अपने समय में आप पहले उठ के उनको समय दे. मेनी पीपल टाइप देयर टाइम कि 12 आवर्स वर्किंग व्हाटएवर, जितना 8 घंटे या 7 घंटे या 6 घंटे सोते, जितने भी बाकी है वर्किंग डेज में, उसमें से 1.5 घंटा 1 या समथिंग दे गिव टू द लॉर्ड. इट डजंट मैटर, देयर इज नो लीगलिज्म. बट अगर समय को हम प्रथम स्थान हर दिन उठ के उसको देते तो वी आर वर्शिपिंग विद आवर टाइम. एंड सो ऑल्सो हर चीज में उनको जो भाता है, कीपिंग इट सेंटरपीस. ओके, सो वर्शिप इज लाइक आई सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम सब प्रार्थना करते हैं कि जो सिस्टम है, व्हाटएवर वी ऑल प्रे कि रिलीज करे कि जूम में वर्शिप, जैसे शनाया वगैरह वर्शिप करते हैं कि अब्बू की जो गिफ्ट दिया है प्रभु ने, वो हर शैतानी ताकत जो आज तक रोका है उखाड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि वो आवाज से हजारों लाखों लोगों की उद्धार हो और चंगाई हो. सो एवरीथिंग इन गॉड्स वर्शिप अल्टीमेटली कम्स टू सेविंग सोल्स. राइट, हम वर्शिप करते हैं, प्रचार करते हैं, आप लोग सुनते हैं, कोई खाना बना के एक दिया है, हर चीज प्रभु के राज्य का अल्टीमेट व्हाट इज द एट द बॉटम लाइन एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं, हम वो एक संस्था है
हमारी कलीसिया एक संस्था है जहां रुए बचता है और दुनिया को हमेशा नरक से और तबाह होने से बचाता है. Everything we do is about at the end of the day about saving souls. Amen. किसी भी तरह वर्शिप से, प्रवचन से, प्रार्थना से लोग बचे, because that's the highest destiny and the highest purpose of man. और ये हमेशा सामने रख के रोज उठ के हमको ऐसा जिंदगी जीना है कि आज अगर आखिरी दिन है और यीशु आ रहा है, and we are prepared for him and we should be found that we are count that day कि जो प्रभु की इच्छा से हमने जिंदगी जी, जहां जाना जाएंगे वहां प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे, वे बचना. I told you there's nothing higher in God than saving souls, and it's high time now. I'll teach you that हमको प्रार्थना हमारी सब चेंज होके that we live our life that is pleasing to God. प्रार्थना में भी जो उनको भाता है, what pleases God. You see, when you are pleasing God in your प्रार्थना, जो प्रार्थना हम करते हैं जो प्रभु को दिल खुश करता है, तो आपकी जरूरत है वो बिना पूछे मांगा देती. Amen. So, and there's nothing greater than saving souls. रोए बचना. So, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, अभिषेक कीजिए प्रभु, और मेरे मुंह से आप बात करेंगे, एंड हर वचन तेरी महिमा के लिए लोगों की जिंदगी में सुधार लेके आए, एनकरेजमेंट लेके आए, और करीब तेरे पास आए, to bring that one step closer, और यीशु जैसा और बने. Thank you Lord for this opportunity, for this honor. हम लेटर्स ऑफ पॉल कर रहे हैं जो अपोस्टल पॉल ने उनके लिए लिखे थे, तो अलग अलग कलीसियों को जो उन्होंने बसाया था वापस जाके उनको शिष्य बनाते हैं. You know what he's doing is what तो प्रभु ने कहा go out and make disciples of all men. उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक salvation प्रे करा दो और उनके नाम में हील कर दो, but he said two things. प्रभु की आखिरी आदेश क्या था? Go out and make disciples of all men and heal them in my name. Lay your hands, heal them. बीमारियां दूर रखे, लंगड़ा चले, अंधे देखे, और बड़ी बीमारियां जो भी संकट सब ठीक हो जाए. So discipleship and the miracles and the signs, wonders and miracles जो है हम देखते आ रहे हैं, they go hand in hand. और अपोस्टल पॉल सबसे ऊंचा काम कर रहा है, वो बहुत ही I believe after Christ is the greatest man born on earth, क्योंकि मैं हर फ्राइडे बोलती हूँ, उनके पास just think about it, उनके पास कुछ भी नहीं था, nothing but a passion to reach a dying world. वो जानता था कि उनकी जिंदगी का मतलब और पर्पस एक ही है कि किसी भी तरह कैसे भी रुए बच्चे, amen, soul से fill heaven, स्वर्ग भरे, क्योंकि वो जानता था कि जो हम सेंटिएंट फेज में हम देखते हैं ये दुनिया की रौनक में लिए 2 दिन का है. And so he entire life was dedicated to him and his band of followers, जो apostles है. हर शहर में और इतनी persecution के बीच में, they lived in very troubled times. We think we go through persecution, बहुत गलत बात है. इंडिया के MP वगैरह में मुझे हमेशा SMS आते हैं, because my brother is in minorities, तो रोज आते हैं कि यहाँ persecution हो रहा है और पुलिस केस नहीं कर रहा है, पुलिस ने रजिस्टर कर रहा है. तो ये उनका कहना है और मानना है कि ये certain political parties are behind it. I'm not too sure about that. लेकिन I know that one thing, कि persecution is integrated into every Christian's life. Not that we justify it, लेकिन हमको ये करना है कि अगर प्रभु ये अलाउ किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करना है, राइट? सो कोई भी शिष्य दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ जिनके घर में जिनकी जिंदगी में इन मेजर्स एंड सीजन्स परसिक्यूशन नहीं हुआ है. और ये लोग दे आर आउट ऑन द रोड, आमेन. और इतने ट्रबल टाइम्स में जहां प्रचार करके अगर प्रचार ओपन नहीं करेंगे, अगर वो उस दिनों में इनको अथॉरिटीज को नहीं अच्छा लगा, सीधा आके उनके गला काट देते थे, बॉइलिंग ऑयल में डालते थे, आमेन. इतने कॉर्पोरल पनिशमेंट्स देते थे, फिजिकली कॉर्पोरल, और उनको इम्प्रिजन्स देते थे, पब्लिक फ्लॉगिंग, केनिंग, विपिंग. और इन्होंने जो तकलीफ से like Apostle Paul said, imprisonments, भूख में, एंग्विश में, दर्द में, सो नहीं सकते थे, और गलत इल्जाम लगा के इतनी परसिक्यूशन, इतनी दर्द और स्टार्वेशन, खाना नहीं खाने के लिए, और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी श्रद्धा कभी नहीं हुई. एंड there's a price to pay. और उनकी खून और पसीना और आंसुओं की जो आज नतीजा क्या है, फ्रूट क्या है, पूरी दुनिया के कोने तक गॉस्पेल आज गए हुए हैं. और आज तक बाइबल जैसा फास्ट सेलिंग, जैसा बेस्ट सेलिंग बुक, सबसे ज्यादा बिकने वाला पब्लिकेशन आज बाइबल है. और 2000 साल से, सबसे ये बहुत सालों से है और होता रहेगा आखिरी दम तक. और जितना बाइबल के खिलाफ फिल्म से बनी है,
और उनको स्कैंडलाइज करने के लिए और उनको कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं जीसस का। आई मीन जो धरती और आकाश का राजा है, किंग ऑफ द यूनिवर्स को हम पैरों की उनके धूल से भी कम है, हमारी औकात है उनके लिए गलत बोलते हैं रहते हैं। व्हाट डज इट व्हाट आई मीन व्हेन पीपल कम एंड आस्क मी इवन अबाउट व्हाट दे थिंक अबाउट क्राइस्ट, आई मीन दे राइट अबाउट दिस एंड दैट। सो काफी लोग या कोई मिनिस्ट्रीज के लिए चर्च के लिए आई ऑलवेज से अबाउट व्हेन इट इज क्राइस्ट, याद रखना ही इज लाइफ, राइट, एंड द ट्रूथ नीड्स नो डिफेंस। जब तक शैतान है चलता रहेगा, शैतान भड़काने वाला है लोगों के अंदर। सो ये जो अपोस्टल पॉल ने इतना, ही इज सच ए नोबल ह्यूमन बीइंग, उनकी जो श्रद्धा से हम आज इस एसी कंफर्ट कोई खाना पका के लेके आ रहा है, वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी गो बैक, यू नो। एंड जो जितने भी प्रभु ने हमको लग्जरीज दिए हैं, जितने भी हमको ब्लेसिंग दिए हैं, इट्स नॉट टू मेक अस मोर एंटाइटल्ड। इसमें क्या हुआ है, लोग एकदम एंटाइटल्ड हो गए, थोड़ी सी भी प्रोसिक्यूशन हो तो ओवर रिएक्ट करता है। इवन व्हेन आई टॉक टू एक्सटेंडेड फैमिली, आई मीन करता है, यू नो, आई सी एन एग्रेशन, एक एग्रेसिवनेस, एक मिलिटेंसी है। नहीं नहीं, क्रिश्चियंस के साथ ऐसा होता है, ये होता है। तो हम लोग, यू नो, दो इट्स टफ। शिष्य ने कैसे डील किया? हर प्रॉब्लम की आंसर हमारे बाइबल में। प्रोसिक्यूशन में हमको नम्रता से अपने आप को झांक करके प्रार्थना और फास्टिंग से है। Yes, you can communicate well. हम प्रार्थना करने। The greatest things are all ordered, ordained and solved by prayer. Amen. We are not called for belligerence and militancy and rebellion against the government, all these things. That's not what the word says. इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बाइबल एक लिखी हुई बुक है, it's just the letter, the spirit is not there, but that's not done. तो हमको जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है, जेन्युइन प्रोसिक्यूशन कौन सी भी स्टेट में कहीं भी हो रहा है, हम प्रार्थना करते प्रभु कि तू वहां रास्ता बनाएगा, छुटकारा दे देंगे, लोगों को आजाद करेंगे, लॉसूट से खुदा का डर डालेंगे जो उनको अथॉरिटीज को, जो उनको छुड़ाते नहीं है, और एमपी में हो, जहां भी हो, प्रभु यू नो एवरीथिंग लॉर्ड। बट प्रोसिक्यूशन इज अ मस्ट एंड इंटीग्रेटेड इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड वी आर कॉल्ड टू प्रे एंड नॉट टू बी इन डिनायल और नॉट टू रिबेल अगेंस्ट इट। वी रिबेल थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर, बिकॉज जो हमारे खिलाफ है वो इंसान नहीं है। क्या बाइबल क्या कहता है? अवॉर्ड, हमारा युद्ध मांस और शरीर से नहीं है, लेकिन शैतानी ताकतों से है जो लोगों के थ्रू ऑपरेट करता है। और हमारे युद्ध जो है हम आत्मिक तौर से करते हैं, उपवास प्रार्थना से, क्योंकि हमारा युद्ध आत्मिक है, हमारा शत्रु आत्मिक है, हमारा शस्त्र आत्मिक है। हमारा शस्त्र है प्रार्थना, प्रेज, वर्शिप और फास्टिंग। ये है हमारा शस्त्र। दीज आर आवर वेपन्स, प्रेज, वर्शिप, एडोरेशन एंड फास्टिंग एंड प्रे। और ये जो शस्त्र है वो हर शैतानी ताकत को अपने टाइम में तोड़ सकते हैं, 100% तोड़ेंगे। जब पॉल एंड साइलस प्रोसिक्यूशन में था, अंदर लिखे तो दूसरी तरफ अपोस्टल्स क्या कर रहे थे? उन लोग मोर्चा कर रहे थे। Amen. They were rebelling against the government. और उनको गुस्से में they were posting, यार इधर क्या कर रहा है? No. उन लोग एक अंडरग्राउंड जाके मिलके प्रभु की आराधना रो रो के आंसुओं से प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, धन्यवाद करते और फास्ट कर रहे थे। और उनकी ताकत, वर्शिप की ताकत, वो सारे बेड़िया टूटे, दरवाजे टूटे, गेट टूटे और उनके पैर की बेड़िया टूटे, वो आजाद हो गए। The worship, true worship has a power to break every chain over every human being, over every government, over every authority, over everything. But we don't see much because लोग जितने भी blessings प्रभु ने दिया है आज आलसी बन गए हैं और क्या बोलते हैं, complacent बन गए हैं, lukewarm बन गए हैं और एक entitlement आ गए। So that's something you have to fight all your life. It is a battle. I tell myself also. Today मैं थोड़ी तकलीफ से आ गई। मतलब तकलीफ क्या है? I mean, because of my leg, I need to stretch it like this. So I don't have a driver as such. जब भी चाहते, but my driver is only free on Sunday. And वैसे because of the मजा में रहती हूँ, हम लोग सब बोट से ही लेते हैं। तो ओला नहीं मिल रहे थे, मिल भी था तो it was too expensive, more than twice. And I didn't, on principle, I didn't want to take that. It's not that I can't, but I just somehow, when something doesn't give me peace, I don't do it. Okay. And though Babu was telling me, take it, go take that, but I said, no, I'll get it. और ultimately 2 रिक्शा चेंज करके आए तो मेरे को अबू मेरी साथ थी, तो I had to fold my legs. दिक्कत हुई, there was pain, but suddenly I was thinking, I was not for anything else. Suddenly the Lord said, start thanking God. I was thanking God कि प्रभु ने कहाँ से कहाँ मुझे लेके आया।
I had 2 dislocations, I had 3 fractures, right? और एक dislocation. My foot was such a mess, was all smashed up. 2 operations and 2 whatever. Today I can walk, I can sit in a rickshaw. So how can I complain, man? I just started thanking and praising God. प्रभु ने मुझे, आप लोग ने प्रार्थना किया टू प्रोसीजर्स, आज मैं चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, रिक्शा पकड़ के अंदर बैठ सकती हूँ. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है. वो मुझे वैल्यू है, मैं बोलती हूँ, क्योंकि इधर से हम बोट जाते थे, मैं चल सकती थी, आई शुड गो, इधर भागम दौड़ी करती थी. जब हमारे पास सब कुछ है, हम उनका वैल्यू नहीं रहता. Simple thing like taking a rickshaw and sitting with somebody is become a luxury that थोड़ी दिक्कत हुई, but I could catch a rickshaw, sit down. I was just thanking God. प्रभु was showing me कि हर चीज में to make me more thankful. Amen. कि हर चीज में धन्यवाद करना चाहिए. God teaches you something. तो ये दिक्कत हुई, I stretched my legs. After some time I became okay. Amen. It remained there for some time. So it's just a small thing. See, जब मुझे चलने की प्रॉब्लम थी, तो मुझे रिक्शा में बैठने की उनकी वैल्यू मालूम है. So many things, how much हमको सांस ले सकते हैं, उनको धन्यवाद करो. वो सांस कोई हमारी लंग्स नहीं देता. हम सुबह उठते हैं, नया दिन देखता है, धन्यवाद करो. उनकी महानता, उनकी ग्रेस है. मैं जोक करती थी पहले जाके, न्यूज़पेपर आपके आजकल कोई पढ़ते नहीं है, मेरे घर में 4 न्यूज़पेपर्स आते हैं, बिकॉज आई रीड राइट. एंड तो अगर आप वहां डेथ कॉलम में आपका नाम नहीं है ना, तो आपका नाम नहीं रहेंगे, धन्यवाद करो. तुम जिंदा हो, धन्यवाद करो. See what happens, the most important thing in life is gratitude. Gratitude is greater than anything on this earth. Amen. वो सबसे ऊंची पैराडाइम है, वो सबसे लाइफलाइन है ग्रेटिट्यूड. जहां धन्यवादी आत्मा है, शैतान वहां ज्यादा काम नहीं कर सकता है, वहां से भाग जाना. Amen. Immediately. See, I told you I was thanking God. I could sit in a rickshaw in the rain with Abbu. थोड़ी दिक्कत हुई, but it's just okay. I stretched my legs after some time. It was okay. Amen. I'm okay now. By tomorrow I'll be fine. So you don't have to go through 3 fractures and 1 dislocation and 2 surgical procedures to know the value of the good health of walking, of normal healthy legs. Man, you don't have to go through. Man, what I'm trying to say is, हर चीज में धन्यवाद करो. And I speak to myself first. Man, धन्यवाद एक लाइफलाइन है प्रभु के साथ, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी हथियार है to make you point out वो things that you have not received as yet. And जो unseen blessings, and once the Lord spoke to me, जो unseen blessings है, जो आप दिखते नहीं है, हमारी सांस, Monica always quotes in her prayer, जो we live, we talk, we breathe, आ सकते हैं, the gift of appetite, the gift of eating, जो unseen blessing, जो हर वक्त तो हमको देता है. The book of Lamentations says, daily he loads us with blessings. Daily his mercies are new. Daily there are benefits in our life. Every day. जब तक इंसान ये blessings appreciate नहीं कर सकता है ना, तो हमको दूसरे blessing प्रभु रोकता है. This came as a huge revelation to me. And I was talking to the children, my children, for that. Okay? Thank God for what you have. Because वो रास्ता खोलता है दूसरे blessings के लिए. जो daily blessings of life आप appreciate नहीं करते हो mindfully. Mind you, it's not easy. Mindfully. तब तक प्रभु डिले करेंगे दूसरी चीज देने के लिए. बिकॉज अगर इनग्रेटिट्यूड में गया, जो धन्यवादी आप में चला गया, तो एक बहुत ही शैतानी चीज हमारे सबके दिलों के अंदर आता है, जो सब कुछ तबाह करता है, वो एंटाइटलमेंट स्पिरिट. So faith is one thing, entitlement is another thing. I'll go into that another time. So हम ये letter Paulos, Apostle Paul लिखता है, and every time I read the letters of Paul, I thank God for this awesome man and his team, जो इतनी दर्दनाक जिंदगी जिए, और आज ये वचन जो उन्होंने खून पसीना beyond what they martyred their lives, ताकि हम सब आराम से बैठ के सुन सकते हैं, ये the word of God, lifeline. Our word of God खुद खुदा है. Amen. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बाइबल स्टडी में आते हैं, हमको ये तय करना है, हम कोई रिलीजियस बुक, धर्म की किताब या कोई स्क्रिप्चर सुनने नहीं आता है. बहुत सारे धर्म के लोग, आज धर्म की पुस्तक आज दुनिया में है, और वो बुरे भी नहीं है, कोई भी पुस्तक नहीं कहता कि गलत है, बट वो सब इंसान का है, परंपरा है, संस्कार है, ठीक है, अपनी जगह पे उनकी औकात है. इट हैज इट्स वैल्यू. सो वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज अदर रिलीजन्स. वी आर हियर टू से ये किताब धर्म की किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर, ये दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. और
ये किताब खुद परमेश्वर है। तो जब जो सम्मान अगर प्रभु यीशु कमरे में था, हम उनको जो देता, वो इस सम्मान समझ के इनको देना है हर लफ्ज के लिए, बिकॉज एवरी वर्ड इज गॉड एंड हिज पावर रेस्ट इन एवरी वर्ड। और उनके वर्ड के लिए जितना भी बोलो वो कम है। एंड जो रिसीव करते हैं, मेडिटेट करते हैं, दिस वर्ड विल नेवर कम बैक नल एंड वॉइड। जब तक वचन है अंदर और वो वचन हम अप्लाई करते हैं, मेडिटेट करते हैं सिचुएशन में, हर सिचुएशन में अपने टाइम में वो 100% वो बदलेगा। आमेन। बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। एक दो दिन में वो नहीं होता है। हम इतने महंगी दवाइयां लेते हैं, इतने डॉक्टर की इतने मेडिकेशन देते हैं, एंड वी गो बैक फॉर रीफिल्स एंड रीफिल्स। आमेन। लेकिन प्रभु का वचन तो मुफ्त में हमको दिया है। हम सोचते एक बार दिया, दो बार, 2 दिन किया, 3 किया, अब तक में हीले, वो छोड़ देते हैं। राइट, दिस द मेडिसिन फॉर लाइफ हर क्षेत्र में। सो आप सब लोग, बच्चे लोग भी, रीड द वर्ड। आप जब तक प्रभु का वचन आप रोज पढ़ते हो नहीं होते, हम अधूरा रहता है। आई टेल माय चिल्ड्रन इज सो अंगद एवरी डे। आप नसवांश देते हैं, भेंट देते हैं और इनोकुलेट करते हैं और ऑयल में प्रोटेक्शन। आई टोल्ड हिम गॉड इज मच मोर देन अ प्रोटेक्टर फॉर यू। नो हिम एज लॉर्ड, गेट टू नो हिम हु ही इज। प्रभु का वचन कहता है, लेट द वाइज मैन ग्लोरी इन हिज विजडम। और बुद्धिमान औरत अपनी बुद्धि पर गर्व करे, और जो स्ट्रॉन्ग मैन वो अपने शक्ति पर अपने गर्व करे। लेकिन जो नो मी, जो मैं पसंद का, लेट हिम ग्लोरी दैट ही नोज एंड अंडरस्टैंड्स मी। दैट इंसान की सबसे ऊंची महिमा है कि प्रभु को हम जाने और उनको समझे, बिकॉज उन्हीं में हमारी पूरी जिंदगी छुपा हुआ है। नोइंग हिम। और कैसे, हाउ डू वी नो हिम? उनके ज्ञान में हम कैसे बढ़ते हैं? जब रोज सुबह शाम वचन पढ़ते हैं और मेडिटेट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो जितना हम सम्मान प्रभु यीशु को देता है, उतना ही सम्मान प्रभु के वचन को देके आप बाइबल स्टडी सुन लो। नॉट एज अ रिलीजियस टेक्स्ट बट एज द वर्ड ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु ने कहा, माय वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ, मतलब मेरे लफ्ज जिंदगी देता है। दैट मीन्स अगर प्रभु का वचन हमारे रूह के अंदर नहीं है, तो हमारे अंदर यीशु में विश्वास भी करते हुए हमारे अंदर जिंदगी नहीं है। इस डायरेक्शनलेस and bottomless and rootless. Amen. So he is writing here to a Timotheus, उनका एक spiritual son है, और उनको उत्साहित करता है, encourage करता है, and lot of great life lessons to learn over here, even about women, ethics, so many things that we talk about today. Who will read? Tara, 1 Timothy 1. Yeah. अभी he is urging them हर chapter में false teachers के बारे में, क्योंकि शैतान, टू अवॉइड शैतान और उनकी चालाकी को बचना एक लाइफ लॉन्ग चैलेंज है। वहां भी शैतान काम कर रहा है और उनको बचाने की अलग अलग, अरे लकी भी है, गॉड ब्लेस यू, और ब्लेस यू लकी, कि जैसे फॉल्स टीचर्स प्रभु यीशु के नाम लेके गलत टीचिंग देते हैं और उनको बेकावा में आके दूर लेके जाता है। इट्स एन ओल्ड 2000 year old चैलेंज, आज भी है। आई टोल्ड यू बेसिकली फॉल्स टीचर्स आर बिटवीन लीगलिज्म एंड लॉलेसनेस। आमेन। एक्सट्रीम टीचिंग, बहुत ही धर्म की जो बंधन में रखते हैं, और बहुत ही है, और एक कानल आजादी जो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ग्रेस पीरियड तुम बच गए एक बार, एक बार बच गया, हमेशा बच गया। सो दिस प्लेइंग कॉशन, नो सर्कमस्पेक्शन टू गॉड्स वर्ड। आप पढ़िए 1 Timothy chapter 1 verse 1-4 onwards. Yeah. 1 तिमुथियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 4th आयत से, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। Amen. देखो, जितने भी लोग आपके तुमको सिखाए, अभी ऑनलाइन बहुत सारे टीचिंग्स है, बहुत सारे वर्शिप है, दैट्स अ गुड थिंग। बट आप जब रोज आप सुबह आप बाइबल पढ़ते हो, इफ यू हैव ओन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, आपको कहीं फिसलने का और बीइंग डिसीव का वो नौबत नहीं आएगी। when you know to glean what is good and just leave what is not from the Lord. Amen. So because बहुत सारे false teachers तभी भी है, आज भी है, और होगा रहेगा till the Lord comes again. Amen. But he said the most important thing है कि तुमको जो teachings है, तुम्हारे दिल को पाक रखता है, pure heart, a good conscience and sincere faith. 3 things, fundamentals of our faith with the Lord, our walk with the Lord. एक दिल जो पाक है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है,
और नहीं सोचता है तो यू गो ऑन द जर्नी। प्रभु के वचन आपको हमको चेंज करता है और रिक्वेस्ट करता है, आस्क होली स्पिरिट चेंज अस टू गिव अ गुड हार्ट टुवर्ड्स एवरीबॉडी, जिनमें कोई कड़वाहट नहीं है, जलन नहीं है, लालच नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचना और बोलना। एंड प्योर हार्ट इज मोर अबाउट हार्ट देन बोलना। प्योर हार्ट एंड गुड कॉन्शियंस, जो कॉन्शियस का मतलब जो हमारा जमीर साफ होता है, मतलब जो वचन जब हमारे अंदर बसता है, जब गलत करते हैं तो तुरंत हमको कन्विक्शन होता है कि ये गलत है, मैं सॉरी बोलते हैं और फिर से वो सही रास्ते पे आते हैं। Amen. Keeping a pure heart, a good conscience and sincere faith, ये है right? सही faith। अगर आपका दिल में, आपका दिल पाक है और आपका दिल पाक है और आपका जमीर, आपका कॉन्शियंस राइट है, so there is no issue between you and the Lord। Amen. इससे बहुत सारे लोग from which बहुत सारे लोग strayed and have turned to idle talk। आगे पढ़िए। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। ये भी happens so many times in Power Club है। बहुत सारे लोग, बहुत अभी नहीं, 10-12 years ago, more 15 years, बहुत सारे लोग, when it was huge, there were hundreds of people coming, बहुत सारे लोग जल्दी, मैं एक ह्यूमन नेचर है, ईगो आ जाता है। मैंने इतना जो सीखा है, अभी मैं बहुत सारे लोग खुद की मिनिस्ट्री भी खोल दिए। अभी God has told me I have to bring my own ministry, मैं खुद खोलना चाहता हूँ। And I so many times Pastor Babu has even told them, this is not the time, sit and learn। और बहुत सारे लोग, I mean I've seen it before my eyes, पता नहीं कहाँ है, they're hearing from the Lord, is their own intellect or whatever, or the desire for power or desire for whatever it is, लेकिन कुछ टाइम के बाद बंद होता है। एंड वेरी सैड कि बहुत सारे लोग जो सही नहीं चलता है प्रभु के साथ, जिनका दिल सही नहीं है, इनके साथ चले जाते हैं और सब तबाह हो जाते हैं। Amen? They have no because everybody is not called to lead, amen, to be a teacher of the Lord. Everybody is not called to be a pastor. Everybody is not called to be a teacher of the Lord. I mean, that is, who would you teach in the world? Pastor Babu says that. Amen? दुनिया में कौन रहेगा? अरे भाई, आपको पूरी दुनिया में जहां आपको कॉलिंग है वही रहो। आपको मीडिया में रहना है, आपको टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या काम है, बिल्डर है, everything God has made, everything God is in him. Be faithful where they are. Amen. There was a phase, there was so much of our youth, they all wanted to be pastors. But he says, what happened when doing things in the flesh? You fall and you make others fall. Right? But we know that the law is good. और ये नियम लगाते हैं, and it's good if one uses lawfully. अभी नियम के बारे में बहुत सारे मूसा के लोग में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन वो किसके लिए रखा है? नियम में बहुत सारे गलत है, लेकिन वो नियम उनका अंडरस्टैंड करके for those who do it lawfully, अगर आपका दिल सही है, आप लेंगे कि ये नियम के बारे में, ये नियम, this law is against these things, ये जो पाप अभी जो बोलने वाले हैं, इसके लिए नियम प्रभु ने कहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल read 9 onwards। ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके विपरीत खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। Amen. इन लोग के लिए नियम है जो अभी तक वो they're still living in the flesh। यहाँ भी this it mentions homosexuality। Roshan, last time you were talking to me, Yes. it clearly says that fornicators, sodomizers, so it's a great sin against God। Amen। ये गलत है और हम प्लीज प्रार्थना कीजिए कि it should not be, is it legal in India as such? Some states इधर उधर करते रहते हैं, पेपर में आते हैं the marriage। It's not completely legal, I हाँ, would say. हम्म। It's not that they are accepting it out in the public. Marriages no na People are getting married, Yeah. but they are Yes. doing it under special laws. अच्छा They are using special amendments to it. Yeah, just all over the Yesterday, yes two women from Gujarat. yes I saw yes उसके बाद there were 2 men। तो I don't know how, I'm just praying कि जो the PM and his cabinet जो laws बनाए ये खिलाफ होना चाहिए। And one lady, I was so thrilled to know, and a lot of memes made about it. It's funny really, but about who the Italy's prime minister, the what's her name? Yeah, her name is They are in love. yeah, Georgia man. It's cute,
but they like each other because I think they have a lot of things in common. And Georgia, please pray for. I started praying for her. Georgia Melanie. She's Melanie, Georgia Melanie. Now, I was reading about her. First of all, was सबसे youngest prime minister Italy का, and the first time female prime minister. She's hardly 47 or 48. Second, she's a Mussolini protege. मतलब, but you know, dictator Mussolini, communist dictator, right? Socialist dictator था ना? Mussolini का वो group से आई है, background से आए हैं. Like our PM came from the RSS background, but he's, I think, evolved since then in many ways. And he will be. I have that faith completely. So, Abhi, today, first time, she's openly declaring and she's fighting against. She said somewhere, I'm trying to see that, I am a Christian. उनके Christian is not religious. और कैसे evolution होता है लोगों का. And I'm against, she is fighting against legalizing abortions and legalizing LGBT. So this is totally unheard of in the West, where they are propagating it and celebrating it. And I also pray, Father Lord, for the battle between Trump and Biden. Let your man win, Lord. That will glorify your name and your law and your norms to come in that nation. I pray for Georgia Melanie, Father Lord. Give her grace and strength to stand firm for what she's standing. And she said, may Christ be revealed to her and whole of Europe and Italy be saved. Amen. So here it's very clear कि इनके लिए नियम है. ये नियम की बात है. ये गलत है प्रभु के सामने. Amen. आगे पढ़िए. यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है. Amen. आगे. And मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया. या देखो मैं कितना गलत था पहले, and how honored is कि मैं उनकी सेवा के लिए वो काबिल समझा. मैं अकेले थर्ड, मैं तो पहले दिन 13. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम. आमीन. बिन समझे. देखो, the Lord chooses murderers. He murdered so many people. Amen. So it's not your character that impresses God, but so many people are caught in sincere mistakes, sincere unbelief or misplaced sincerity. आप शायद इसलिए हम God, nobody's above God's or two below for God. I mean, nobody's above correction, nobody's below condemnation. Amen. Redemption. So when we start praying, हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, you never know who God has chosen when for. जब सब कुछ पलट सकता है, the person who hates Christ आप हमसे कहीं सबसे ज्यादा persecute करता है, खिलाफ है, जब प्रभु का टाइम आता है उनका दिल छू लेता है, तो everything will change in a second. Amen. Never give up. आपके माँ बाप होगा, आपके बॉस होगा, आपके कलीग्स होगा, फ्रेंड्स होगा, everybody is a candidate of salvation. जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में डाला है, इसलिए आपकी जिंदगी में आपके हर कोई प्रभु यीशु को जाने, इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए. प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना. Amen. वो it is a spirit of tenacity. Most important thing is प्रार्थना नहीं छोड़ना. You never know when the time comes, because that's what God wants from us. आगे पढ़िए. हाँ. और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ. ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ. आमीन. Because he was against it. आगे पढ़िए. या पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में मसीह यीशु अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई. जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं. Amen. Going to believe in him fully. See how gracious God is with him. इतने सारे लोगों को मर्डर किए थे, but he had chosen him. प्रभु ने उनका दिल देखा था, इतने बड़ा पापी, लेकिन उनका दिल वो सही था, वो सही समझ के वो करता था. आगे पढ़िए. आप सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे.
Amen. हाँ. Amen. 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 So glorifying the Lord for a murderer, a Christ hater, and a persecutor. So whoever it must be, maybe your father, mother, brother, sister, daughter, son, आपकी बॉस जो भी है, you continue to pray. Amen. आपकी श्रद्धा से जब उनका वक्त आएगा सब कुछ पलट देगा. प्रभु के हाथ में कुछ भी असंभव नहीं है. उन लोग people are not saved enough because हमारे दिल के अंदर बर्डन नहीं है. थोड़ी देर प्रार्थना करते हुए छोड़ देते. और वो शैतान की सबसे बड़ी चालाकी है. हम वो छोड़ देते हैं. हम टायर्ड है, वी गिव अप. या नहीं, ये प्रार्थना इज अ लाइफ टाइम थिंग. आमेन. दैट्स व्हाई इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, प्रे कंटिन्यूअसली, प्रे विदाउट सीजिंग. प्रे हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ओनली थिंग दैट वी कैन डू, जो कंटिन्यूअसली जिंदगी में क्या करते हैं, हमारी सांस लेना. ब्रीदिंग इज कंटिन्यूअस, राइट? वी कांट टेक अ ब्रेक फ्रॉम ब्रीदिंग, राइट? तो वैसे ही हमारी प्रार्थना, हमारी सांस लेते हैं, लास्ट लेने तक होना चाहिए. ईश्वर बिकम की हर जगह, कहीं भी, किसके लिए भी प्रार्थना करो. आमेन. हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई से लड़ते रहे. Amen. If having faith and a good conscience concerning, having a good conscience, having rejected concerning the faith of suffered shipwreck, मतलब आप श्रद्धा से करो. There will be challenges. आप देखो good warfare, and by then you may पूछ कर, प्रभु बोलता है आप, हमारी जिंदगी इस दुनिया में क्या है, एक युद्ध है. Keep on at it. It's a warfare. Every day we are fighting the enemies of our faith. रोज पे रोज हम शैतानी ताकतों को लड़ रहे हैं. मैन शैतान चाहता है हम सोते रहे, इधर नहीं आना, हमारी हिंड्रेंसेस बनता है. जब क्लेश लेके और घर पे क्लेश, जहाँ काम करते हैं क्लेश, या कोई दिक्कतें आती है, कोई छोटी मोटी बीमारियां आती है. दिस आवर लाइफ इज इन कांस्टेंट वॉरफेयर. सो वी हैव, as we get to the spirit of prayer, it will become a natural process of living warfare. Amen. And as we learn to pray, cultivate a lifestyle of praying, mindfully प्रार्थना करने के लिए. रिक्शा पकड़ने से पहले, बैठने के बाद, रिक्शा ड्राइवर को गॉस्पेल दे दो, जहां भी है. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ यू. एंड क्या है उसमें, क्या है, हर फायदा हमारा है, प्रोटेक्शन हमारा है. एंड गॉड एंड शैतान इज डिफीटेड व्हेन you are covered in a envelope, in a bubble of prayer. शैतान ज्यादा देर तक नहीं कर सकता. Amen. It's an envelope, it's a haze, it's a vision, it's a kind of an aura of prayer around you. God wants that because वो शैतान ज्यादा देर तक वो नहीं रह सकता है, और उसमें बहुत बड़ा फायदे हैं. You will see door opens, soul saved, and बंद दरवाजे खुलता है, रुए बचता है, favor of God goes with you. So make prayer your lifestyle. Amen. अब देखो, अभी 2 लोगों के बारे में जो कलीसिया में बहुत गलत किया है, वेद को रिजेक्ट किया है और डिवीजन लेके आ रहा है. प्रभु ने, अपोस्टल पॉल ने उनके नाम लिए 2000 से पहले, उनके बाइबल में लिखा है. तो he found it important to warn people that everybody in the church is not going to be the same. And he जो दिल देके वो कलीसिया बहुत दिल से, दिल अपना जिंदगी निछावर करके वो कलीसिया चली थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन भी था. राइट? तो आगे जाके जो गलत करते हैं, बार बार उनको वार्न करने के बाद भी, वो कौन करता है? शैतान. इज अ लाइफ लॉन्ग चैलेंज. वहां भी डिविजिव या टीचिंग के रिबेलियन करता है, डिविजिवनेस करता है, तो उनको बाहर निकाल देते थे. और उनका नाम भी लिखा है, दैट ही सेज, रीड 20th. उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वो परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें. See, it's a very strong word. So उन्होंने शैतान के हाथ में दिया था, मतलब he has cursed them. So this is a period of grace. आज I don't think any pastor leader does that. हम कोई किसी को कर्स नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए. अगर अपोस्टल पॉल किया है, it must have been led by the Holy Spirit, but we can learn and honor that. The point is not to curse, but here to learn कि प्रभु ने, अपोस्टल पॉल ने कलीसिया को इतनी पवित्र और इतनी ऑनर का सबसे ऊंचा स्थान जिंदगी में दिए कि जो उनके खिलाफ उठता है उनको कर्स देता है, और उनको he removed them from the church and he said, I've given them to Satan's hands. Amen. So we are called to watch out, learn from him the value and how much value and honor the church is. जो कलीसिया में
ट्रबल करता है, डिविजनस करता है, गलत करता है, अगर हम मुंह से उनको नहीं बोले भाग, अगर उनसे दूर रहना है और ऐसी चीजों और व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, ऐसे व्यवहार से दूर रहना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। बाकी एज अ लीडरशिप टेक्स अथॉरिटी डिसीजन वट एवर दे डू, बट पवित्र, क्योंकि प्रभु, व्हाई डिड पॉल हैव टू डू दैट? सेवरल टाइम्स ही डिड इट। क्यों? क्योंकि कलीसिया प्रभु का शरीर है और उनका दुल्हन है, और उनकी पवित्रता और सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए he had to take these steps, anything that would come against the purity and the pristinity of the place. See, that's high reverence he held the church, and how much we take the church for granted nowadays. This is to learn to revere that कलीसिया जब हम मिलते हैं चार बंगले में संडे को, is holy ground. हम अपनी पुरानी नेचर, पुरानी की हालत बाहर छोड़ के हम कमिंग पवित्र स्थान में आ रहा है, उनकी वचन सुनने, उनको वर्शिप करने, हमारी इरादे, नियत, सब एवरीथिंग शुड बी in connected with the Holy Spirit. Amen. Knowing, with flowing in love, good conscience, and a pure heart and a sincere faith. Three things: pure conscience, pure heart, good conscience before God, pure heart before God, and a strong, sincere faith. Amen. Therefore, exert, और अब ये is teaching us one of the most important things, हमारी prayer life के बारे में कैसा होनी चाहिए। आगे पढ़िए 1 Timothy chapter 2। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। Amen. इन्होंने ये कहा है कि आप पैसा अपने आप शुरू करो। प्रार्थना मतलब आपका लिस्ट प्रभु को दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, परिवार के लिए करना, प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए, शॉपिंग लिस्ट नहीं। सो नहीं, prayer, there's no harm in these things, but prayer is much more than that. Prayer is thanking him and praising him and worshiping him. And I tell you, the person who knows and connects with the Holy Spirit, whose frequency is Jesus, so सच्चे दिल को खुदा को प्यार करता है and longs to spend that time with him and worship him and thank him, I tell you, everything that he needs on his earth will be supplied to him with honor. Amen. You know who your God is. First of all, प्रभु कहता है, apostle कहता है कि सब मनुष्यों के लिए, there are 5 types of prayer. First is supplications. क्या है supplication? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? Chapter 2 verse 1. बिनती मतलब पुकार, ये सब आत्मिक चीजों के लिए, एक भी शारीरिक चीज नहीं है। Amen. बिनती करते बार बार, प्रभु मेरे घर को बचा लो, मेरे माँ बाप को, भाई बहन, बेटा बेटी, Amen. और जहाँ काम करने वाले लोग, जहाँ भी है, बिल्डिंग, Amen, जहाँ रहते हैं, एवरीथिंग, Amen. और उसके बाद प्रेयर्स मिलता है, उनके अलग लीज, उनकी प्रेयर के लिए प्रार्थना कर, उनकी कोई जरूरतों के लिए प्रार्थना करते, कोई बीमार लोग है उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना। ऑल प्रेयर इज आउटवर्ड, इज basically coming from your sincere heart towards others' needs. Our prayers are fundamentally for others' needs, because the simple principle of God is, you build my home, I'll build you. Amen. God says, तो दूसरों के लिए करते हैं। Intercession is the highest form of prayer. मतलब वो हम बीच में खड़ा होके प्रार्थना करता है। See, first is supplications, जो हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो whatever you know, prayers include thanksgiving, praise, worship, हम उनको धन्यवाद करते हैं, और इंटरसेशन करते हैं दूसरों की जरूरतें के लिए। इंटरसेशन का मतलब है प्रभु और कोई भी देश के लिए हम इंटरसेशन करते हैं, देश के लिए, दुनिया के लिए, और मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, अथॉरिटीज के लिए, हम या कोई अपनी फैमिली होगा, जो भी है, बहुत ही सख्त, इट इज समथिंग अ वेरी सीरियस नीड, somebody who's very seriously sick in the church. It could be Jemima, और कोई सीरियस है, या करिश्मे, कोई somebody who's very seriously sick. We stand in the gap, हम बीच में खड़े होके के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती मांगते हैं, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी दया की, उनकी चंगाई के लिए, और कोई भी जरूरत है, इंटरसेशन। और अगर प्रभु की न्याय उनके पर आने वाला है, आमेन, सो प्रभु प्यार, इसी 22:30 में लिखा है, आई लॉन्ग फॉर समबडी, मैं बहुत आस के साथ में ढूंढता हूं, अगर कोई भी मेरे में और बीच में, उनके बीच में दीवार की तरह। इंटरसेशन इज द हाईएस्ट कॉलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इंटरसेशन जब करते हैं हम यीशु के, हम हमारा खुदा यीशु के प्लेस लेते हैं। दिन रात अब खुदा यीशु क्या करता है अभी? ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस डे एंड नाइट, and we are all little Christ. हम छोटे छोटे मसीह है, छोटे छोटे जीसस है। कहाँ? आपके घर का, अपने बच्चों का, अपने भाई बहन का, आमेन, जो भी है,
We are little Christ interceding for God's mercy and not judgment on our mothers, brothers, sisters, friends, wherever we are. घर पे जहाँ काम करते हुए, this is the most important prayer, apostle teaching. The most key word is first of all. प्रार्थना में सबसे उत्तम स्थान है और supplications, prayers, intercessions and giving of thanks we made for all them. And then is धन्यवाद देना हर चीज के लिए, हर घर के लिए, हर चीज के लिए, हर जो हमारी जिंदगी में, हमारे घर में जो काम करते हैं, हमारे माँ बाप के लिए. गिव थैंक्स फॉर एवरीथिंग. दिस इज समथिंग आई एम लर्निंग नाउ. इवन इफ पीपल आर फ्लॉड, उनमें कमियां हैं, गलतियां हैं, हमारे घर वाले हैं, उनके लिए धन्यवाद करो. आप इनके प्रभु ने आपकी जिंदगी में आपका माँ बाप दिया है, आपके घर में काम करते हैं लोग, आपको बच्चे दिए हैं, उन सबकी दोष निकाल के लिए प्रार्थना करो. You know, as you start praying for them, I can tell myself also this, as you start thanking God for them, every change will start place. Everything in them will increase because thanksgiving is so powerful. जब प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब 5 रोटी और 2 मछली को देके उन्होंने धन्यवाद किया, तो क्या हुआ, धन्यवाद करने लगे. जब इतनी 15,000 की भीड़ सामने बैठी थी और इतनी छोटा सा खाना उनके पास था, उन्होंने ऊपर देके धन्यवाद किया. धन्यवाद करिए, क्या हुआ, वो बढ़ता गया. नॉट जस्ट एडेड बट मल्टीप्लाइड. In the same way, when you start thanking God for your children, for your family members, everything in them will increase. The goodness of God will increase in their lives. This is something I used to consciously talk to myself, because when I sit down, it gets subjective and I tend to focus on the negative things, right? But God said, give thanks for all men. And now for governments and for in authority, that we may lead a quiet, peaceable life in all godliness and reverence. आपकी जिंदगी में अगर शांति चाहिए और सम्मान चाहिए और प्रभु की प्रेजेंस चाहिए और पीस चाहिए, तो अपनी अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करो. I don't know how it works in God's chemistry. Like हम governments के लिए, first of all, this I write very often on Saturday Nation Prayer and I've taught, सबसे उत्तम स्थान पहले प्रार्थना गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए. ज्यादातर लोग क्रिश्चियन चर्च क्या करता है, गवर्नमेंट का नोच निकालते हैं, स्लैंडर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. और रोमन चैप्टर 30 से रेवरेंस द गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं तो प्रभु की गुडनेस उनके अंदर बढ़ता है, राइट. एवरीथिंग इंक्रीजेस. सो क्योंकि अगर जब तक हम गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारी जिंदगी में शांति नहीं आएगी, godliness नहीं आएगी, reverence नहीं आएगी. In fact, if you can take 5 to 10 minutes every day and pray, it's a great thing. But at least on weekends, on Saturday, 20 मिनट निकाल के, ये मेरा लफ्ज नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, मेरी थॉट प्रोसेस नहीं है, ये खुदा का वचन कहता है कि सबसे उत्तम प्रार्थना अपने गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करो. और जब गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करते, उसी से प्रभु की उपस्थिति आता है. तो हर चीज में अपने बीएमसी के लिए प्रार्थना करो. You see, I was praying so much today, seeing the garbage cans not done. Amen. बीएमसी के लिए जो नए मेट्रोज आ रहे हैं, जो नए चीज आ रहे हैं, हर चीज के लिए becomes integrated into your life. हर चीज के लिए धन्यवाद करो. धन्यवाद प्रभु कि ये नई चीज आ गया. धन्यवाद प्रभु, thank you Lord for this new thing here, for the metro train, for the new metro, for the what's that train, that new bullet train, no, monorail. Monorail is also there. Yeah, something new has come up yesterday. Underground, I show it to you. That is, they are building a metro trains underground. Yes, underground, yeah. So I was thanking God. ये सब, when you start thanking God, तो प्रभु का सेफ्टी आ जाता है, प्रोटेक्शन आ जाता है. You know, when you start thanking God for everything, शैतान की कोई भी चीज अगर आसपास है, उसके अंदर है, वो भाग जाता है, वो टूट जाता है, वो ठीक हो जाता है. Thanking God for things purify people and situations. जब हम पाओ उधर से धन्यवाद करते हैं, तो शैतान की कोई भी एजेंडा है, वहां से भाग जाता है. Yes. Start thanking God for every progress in the city, for everything that needs to be done, for BMC, for everything, and you see the changes, because this is the most important thing before God. And he says, but this is good and acceptable. And 3 and 4, ये one of the most important verses. लोग इनको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, but pleasing God, प्रभु का दिल को क्या खुश करता है, अगर वो हम नोट करते हैं और हमारे दिल के करीब है, you have arrived in Christ. Amen. How precious you are to God. प्रभु के साथ आप कितना अनमोल है. When you know his heartbeat, उनका दिल को क्या खुश करता है. Amen. Read 3 and 4. ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता
और भाता भी है। जो ये अच्छा लगता है और भाता भी है। ये नहीं लेके हमारी लंबी लंबी हमारी लिस्ट उनको दे दो, उनको उनको भाता है और अच्छा लगता है, वो दे देता है बिकॉज इज लविंग हेवनली फादर इन ड्यू टाइम व्हाटएवर दैट यू नीड, बट द वन व्हाई नॉट एम टू प्लीज आवर हेवनली फादर? व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन हिम? What is the most, his heartbeat is in souls. Amen. And he says that for this is good and acceptable. उनको अच्छा लगता है और भाता है. And catch what the Lord says, what is good to him and pleasing to him. ये ढूंढ के निकालो, ये कैच करके अपने दिल के बसा. And do it because प्रभु आपको प्यार करता है. Expects it from you. अगर 2000 साल पहले बाइबल में लिखा है, ये expects it from you. It's important enough to be written there. आगे पढ़िए. जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले. ये like what I said, this is who desires that all men be saved. वो चाहता है कि पूरी दुनिया बचे. प्रभु का दिल, उनका धड़कन, उनका से है कि आप जहां काम करते हैं उनके बॉस जहां बोले वो प्रार्थना करो. आपके स्टूडेंट जहां भी है, ये सबसे ऊंचा प्रार्थना मैं हमेशा बोलती रहती हूँ और आज तक बोलेंगे, हमेशा बोलती रहेंगे. वो दिल प्रभु का दिल का धड़कन है. आप जहां, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि एक सडनली जाके आप उनको सैल्वेशन प्रे करें, बट एज यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम, जब कि प्रभु उनका मेक क्राइस्ट बी रिवील टू देम, प्रभु का सैल्वेशन वहां है, उनके दिल के अंदर प्रभु एक भूख और प्यास डाल दो प्रभु, कि वो प्रभु के लिए तड़पे, तो आप ऐसा मौका बनाए कि मैं जाके वो सैल्वेशन दे दे. Amen. That is the highest prayer you can make. अगर ये जरूरी नहीं कि आप इमीडिएटली आप वो रिजल्ट देके, क्योंकि प्रभु कहता है एक बोता है दूसरा पानी देता है लेकिन फसल में देता हूं. So sometimes हो सकता है, I think talking to Namrata today, I was talking to yes Namrata, कि प्रभु ने आपको शायद उस ऑफिस में कुछ टाइम के लिए, इस टाइम के लिए रखा है ताकि आप वहां सैल्वेशन के बीच बोलो. एंड ये नहीं कि यू कैन जस्ट गो जाके सबको सैल्वेशन डायरेक्टली दे दे. इफ समटाइम्स होली स्पिरिट लीड्स टू यू, पवित्र आत्मा ऐसा मौका बनाता है कि आप जाके यीशु शेयर करें, दैट्स ग्रेट. बट द वन थिंग एवरीबॉडी कैन डू इज स्टार्ट प्रेइंग. आप जहां भी काम करते हो, सुबह 5-10 मिनट निकल के वहां जाके सबके लिए प्रार्थना. जाके काफी लोग करते भी है, मैं इनकरेज करती हूँ. नंदा जहां काम करती थी सबके लिए प्रार्थना करती थी, कितने लोग चर्च में भी आए और काफी लोग और भी करते हैं. अभी 2 दिन पहले फोन आया था, सारे लोग बीमार पड़े हैं, तो प्रार्थना करो करके. यस, और बोला I- हाथ करो. आमेन. थैंक यू जीसस को बोलो प्रार्थना करोगे. आमेन. मैं भी करती हूँ. यस, आप जो करते रहना, बिकॉज दैट्स मोस्ट प्लीजिंग टू गॉड. वहाँ पे कितने लोगों का शादी में जाने के बाद कितने लोगों का मेरे हाथ से शादी हुई. किसी का शादी बहुत नहीं कुछ हुआ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है. काफी लोग चर्च में भी आए. एक फेज है, निकल जाएगा. आमेन. वो दूंगा बेटा से लेकर आई थी ना, वो मेरा शादी मैंने मेरे Yes. हाथ से कन्यादान का मूल पर. हाँ, डालो. एक गया मतलब. तो ये जो कर रही है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ. इसके थ्रू कितने सोल्स बचे हैं और एक उनके लिए कंटिन्यू प्रेइंग फॉर देम, वो प्रभु यीशु को जाने और समर्पण करें. हम नहीं चाहते कैसा होगा, इतना कट्टर धर्म में फंसे हुए हैं, मगर मेरा खुदा जानता है कब क्या करना है. हमारा ड्यूटी है प्रार्थना करना. कब किसी का दरवाजा, दिल का दरवाजा खोलना, रिवील क्राइस्ट इज हिज बिजनेस, बट आवर ड्यूटी इज टू प्रे. But unless you pray, he cannot move or he will not move. Right? So this is it. See, this pray for all men. यहाँ नहीं लिखा है कि अपने कोई जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, ये करना. This is seek ye first the kingdom of God. मेरे धर्म, मेरे राज्य को ढूंढो और बिना पूछे मांगे तेरी जरूरतें आएंगे. Because your heavenly Father knows what you need even before you ask them. Amen. So आगे पढ़िए. For there is one God and one maker, and there's one God and one meditator between God and man, Jesus Christ. So this is the gospel, who gave himself a ransom for all to be testified. Amen. For whom I am appointed a preacher and an apostle, and speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles of faith and truth. एक ही खुदा है हमारा, जिनका बेटा यीशु मसीह है, और एक ही रास्ता है हर एक इंसान जो आज तक पैदा हो इस दुनिया में स्वर्ग में जाने के लिए. चाहे आपका बॉस हो, चाहे कोई शाहरुख खान हो या कोई Elon Musk हो, everybody. There's one common destiny for each one of us. जितने भी उनके पास शायद 10,000 crore होगा, जो भी, I don't know how money works, but everything, death stabilizes and equalizes all. हम सबको एक दिन यहाँ छोड़ के सारा धन दौलत जाके उनके सामने खड़े होके हिसाब किताब देना पड़ता है अपने जिंदगी का. चाहे एलन फ्लिन हो या इलॉन मस्क हो या कोई फेसबुक ओनर हो या whatever, डोनाल्ड ट्रंप हो, our own PM, whoever.
So it is ये ज्ञान हम जानता है, प्रभु ने हमको रिवील किया है, वो नहीं जानता है, वो शैतान की शिकंजे में है, वो ऐसा जी रहा है कि कल कोई है ही नहीं. There is no accountability in their lives. But as we pray, the darkness will sift. That realm will come, the haze will go, eyes will open, ears will open, understanding will come. Because जो यीशु के लिए उन लोग आत्मिक अंधकार में है, वो सोचते हैं कि सब कुछ दिखता है, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखता है. The scales of their eyes, उनके ऊपर जो पर्दा है उनके हाथ आंखों के ऊपर, दिल के ऊपर, जब हम प्रार्थना करते हैं वो खुल जाएगा. Because salvation is a spiritual thing, and it's not something you can sit across a table and give it in 5 or 10 minutes or half an hour. It's a revelation. It requires us to pray. I desire, and this is how he says, I desire therefore that men pray everywhere, lifting up of holy hands without wrath and doubting. This is the posture of prayer. That it's just not necessary that you hold your hands every time, but अगर आप हाथ उठाकर हम प्रार्थना करते हो और दिल से हम मानते हो तो बहुत अच्छी बात. Talks about समर्पण. Amen. 8 and 9. 8 पढ़ो. इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें. Amen. अभी बहुत सारे चर्चेस में ये भी लिखा है कि women should not lift up their hands, only men should lift up because it's written men. It's lack of knowledge or whatever. Those legalistic churches may know men should not, only because it's written men should lift up. ऐसी बात नहीं है. Because book of Galatians हमने क्या पढ़ा? There is no male or female before God. Amen. We are all one. We have different roles. No one is superior or inferior to the other. And we are the helpers, and we in fact take the place of the Holy Spirit. और ये नहीं प्रभु ने हमको एक हेल्पर बनाया है. हमारा रोल्स अलग है. We are homemakers. Where many people they work too. There's nothing wrong with that. Proverbs 31, Deborah Old Testament में, और बहुत सारे लोग Proverbs 31, she was a working woman. वो पूरा घर चलाते थे, बिजनेस करते थे, 2 businesses. वो bills, she was supplying bells, sashes, and she was also supplying garments. Amen. But she was taking care of her maid. She was a life force of that home. Amen. इसलिए प्रभु कहता है बुद्धिमान औरत अपना घर बांधता है, not बुद्धिमान मर्द. Yeah, the honor of building a house is given to the woman. और एक बेवकूफ औरत अपनी हाथों से घर तोड़ देता है. मैं बुद्धि कहां से आती है? प्रभु यीशु से, उनका वचन से. Amen. बुद्धिमान औरत घर बांध देता है. It's a present tense that हर दिन तोड़ फोड़ होता है. And every day in the morning, the woman is privileged to wake up and build that home. Amen. On the power of seeking him and his wisdom and his word. Amen. अपनी worship और word से वो घर बांधता है. So that's a privilege given to women. Amen. We are builders like the Holy Spirit. And now it talks about dressing. वहां भी बहुत legalism आई है कि बहुत सारे चर्चेस में हम गए हैं कि वहां बिल्कुल बहुत साल पहले हमने क्रूसेड के लिए केरला में गए थे, तो उस संस्था में बिल्कुल ज्वेलरी नहीं पहनते हैं और सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं. तो उनकी जो लीडरशिप सफेद कपड़े पहनते हैं, और अगर दूसरे लोग पहनते भी हैं तो एकदम pastel shades. तो when I came to the Lord, there was a whole lot, इतने चर्चा, इतने arguments, इतने बड़े काले कपड़े पहनते हैं, पता नहीं कैथलिक चर्च में होगा. तो काला कपड़ा. हाँ, तो बहुत सारे फोकस है कि ऐसे कपड़े पहनो और ये ज्वेलरी नहीं पहनो. तो तो it didn't go well with me. लेकिन पास्टर जी बोला, just see, when you're in Rome, do as Rome does. But it didn't work out that well. तो एक पर्सनल कन्विक्शन है, उन लोग एक शारीरिक चीजेस लेके, शारीरिक जो आउटवर्डली चीज लेके बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बनाता है. But the Lord, what he's talking about holiness is holiness of the heart. अगर मैं सफेद कपड़े पहनूं और कोई ज्वेलरी ना पहनूं, लेकिन दिल के अंदर कड़वाहट है, जलन है, झूठ है, तो क्या फायदा? So ये सब शैतान की शिकंजा है. Like I told you, there are 2 sides of false doctrines. One is legalism and one is law. ये legalism वाली है. मैंने बहुत सारी चर्चेस ऐसे अटेंड किया है और वे entire focus is outside. क्या पहन रही है, ये पहन रही है, washing of the cup. एक और इसकी स्कर्ट की लेंथ कितना है? once 2002 में we have gone somewhere in Mumbai, another church, और वहां प्रभु ने had given such a mighty revelation कि इस चर्च बहुत आगे बढ़ सकता है.
लेकिन तुम लोग की फोकस है कि आप लोग सारा फोकस आउटसाइड कि किसी का स्कर्ट का लेंथ कितना है, जानकी कितना का, उनका दिल का हालत क्या है, एंड दैट इज, इसलिए द स्पिरिट ऑफ जेजबेल इज कंट्रोलिंग दिस चर्च. Oh, the people were set free, shouting, screaming. It was a bandhan. The church was in bondage. बहुत साल पहले, it's more than 22 years ago, and of course it has moved since then. But this is all शैतान की शिकंजा to make you focus on the outside. ये नहीं करो. और Colossians में हमने क्या लिखा था? Don't come into false humility. Don't touch. Don't see. Don't. I talked, I think, 2 Fridays back. ये नहीं छुओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं पहनो. Amen. और इससे तो कोई फायदा नहीं. एक झूठा नम्रता, क्योंकि false humility, the apostle Paul calls it false humility. You see this, because प्रभु यीशु कहता है, the kingdom of God is not eating and drinking. It is peace and righteousness. These things of only value in the Old Testament. So you have to know the balance between legalism and lawlessness. तो यहाँ पढ़िए in like manner. Yeah. वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से. Yeah. See, the Bible is contextual and comprehensive. इस देशों में जहां प्रीच होते थे, वहां it was very lot of debauchery. वहां के I would say naturally बहुत सारे women, there was prostitution going on, the women were wanton. तो उनके कपड़े, there was elaborate dressing and lot of jewelry even into the hair, braided into the hair. Probably it looked aesthetic, but everything was very showy. So God was trying to tell them that there's a lot of jewelry woven into the hair and outward. उनका particular culture था, बहुत ज्यादा ज्वेलरी उनका कल्चर और उनका परंपरा था. तो उनको कह रहा था कि तुम फोकस अगर ये करो तो दूसरे लोग, यू टेक अवे द फोकस अवे फ्रॉम गॉड. तो उन्होंने क्या थी, आपकी सुंदरता ये चीजों से नहीं आती है. सी या मॉडरेट, आप बैलेंस होनी चाहिए, एंड विद ब्रेडेड है, एलैबोरेट, क्योंकि वो कंटेक्चुअल था. वो उस देश के ऐसे वुमेन थे, दे वर वेरी वांटेड वुमेन, राइट. बट दैट डजंट मीन ये पकड़ के डॉक्ट्रिन बनाता है कि ऐसा नहीं पहना चाहिए, हेड कवर होना चाहिए. कुछ लोग, देयर वाज अ चर्च दैट सेज दैट ऑन संडे यू शुड नॉट वेयर जीन्स एट ऑल, वेयर फॉर्मल क्लोथ्स. हाँ, even they can't to come and somebody was with us, you could wear formal trousers, then that's fine, it's fitted, but don't wear jeans. Amen. So yeah, so much focus on the outside, So ठीक है, we are not here to criticize other things, but the Lord says that for which is prayer. Yeah, 10 पढ़ो. पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को ये उचित भी है. Amen. तो it is contextual. अगर एक young लड़की wears modern clothes, whatever, that we cannot condemn them or anything. There are people coming from the media, film industry, modeling. I don't believe in all that. Amen. So as they come, पवित्र आत्मा खुद उनको बताएंगी. The most important thing is to introduce them to Christ, not to pull them under rules and regulations. Rules and regulations की बहुत सारा परंपरा है. So it is a hardened heart. Amen. और जैसे पवित्र आत्मा उनके अंदर बसेंगे, अपने आप कन्विक्शन अंदर आता है कि ये सही है, ये नहीं सही है. These are all personal convictions, not to make doctrines out of it. Amen. But a woman for which is prosper, for women professing godliness with good works. Amen. तो हम godly women कि हमारी कर्म अच्छी होनी चाहिए. The most important thing is that your life should be full of works that glorify God. आपकी काम काज everywhere of people, compassion, helping others, praying for others. This is a special gift given to women, because a wise woman builds a home on compassion and on helping. And helper is a huge name given to us. Holy Spirit helper. God says, I've given you that to help each other. Man. Let a woman learn in silence with. अभी ये भी doctrine बल्कि बहुत सारे over the years, now I'm 36 years in the Lord, कि women are not allowed to preach, not allowed to teach, वो चुपचाप उधर बैठना है. जैसे पढ़िए 11, 12. इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए. आगे पढ़िए. करेक्ट. 11 and 12. को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए. मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे. Amen.
अभी वो भी it's very no, people this one a lot of young people come and ask me बहुत सारे लोग कि this is so Pastor Boni, this is so patriarchal, yeah, chauvinist है, women are, yeah, बहुत सारे doctrines है, women are not allowed to teach, preach, amen. So I wanted to ask, I heard a woman preacher say some, अगर कोई आपका कोई pet dog cat, amen, जो मर रहा है या खड्डे में गिरे हुए या कोई भी इंसान कोई भी और गिर रहा है, amen, अगर passing by is a woman, amen, and she is the first one to see खड्डे में गिर रहा है वो इंसान को बचाने के लिए, तो she won't save that person, amen. It's because helper that compassion is kept, amen. In that अगर वो कोई भी औरत को अगर मौका मिले किसी को बचने में खड्डे में गिर गया है तो बचाएगा, क्या वो ऐसा गलत है कि औरत नहीं बचा सकता है, amen. So if a woman can save a physical body, well, isn't the same thing equation spiritually, right? अगर कोई बचाने औरत कोई जा रहे हैं कोई खड्डा में है, she calls for help, whatever she calls people, so there's no demarcation when you can allow a woman to save someone physically, right? But you will not allow a person to save someone spiritually. See the hypocrisy. So इसका मतलब क्या है, उस दिनों में I told you एक wanton culture था कि ये एक बहुत ही I would say एक culture बहुत डिबॉच था, तो औरतों के लाउड ज्वेलरी, लाउड ड्रेसेस और बहुत ऊंची ऊंची आवाज में, they had no etiquette and grace, social graces नहीं था, ऊंची आवाज में कलीसिया में बात करते थे, and because of that culture there was a lot of fights going on in the church, amen, because many of them were prostitutes, that was those days. So उनका जब ऐसी कल्चर से लोग आते हैं, it takes time for them to change, तो तभी उनको तो चर्च में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे, there was very raucous, तो इसीलिए टिमोथियस ने कहा कि you have no authority. See, there are certain kind of women, तो उनके एक desensitized होता है towards men, so they treat them also like that, I think it's the same thing everywhere. तो एक नॉर्मल औरत, हम जो कोई मर्द के साथ बात करे और फलाना औरत बात करे, there's a difference. So it's that approach is different. तो एक रॉकस एक लाउड बिहेवियर चर्च में था, तो वो रोकने के लिए बोला कि तुम अपने विमेन जो लाउड विमेन है, एग्रेसिव विमेन है, मिलिटेंट विमेन है, जो बहुत झगड़ाले करते हैं, लॉट ऑफ फाइट्स ड्यूरिंग दैट टाइम कलीसिया के अंदर, तो कलीसिया के अंदर इतना डिवीजन करना, इतना रॉकस, इतना ये डिंडोरा मतलब लाउड नॉइज, इतना न्यूसेंस या ये शोर मचाता है, तो आप अपने घर में जाके अपनी पतियों से पूछो, आप घर में, it is written very contextually for that particular country. I do not permit to have teach or authority over a man. So that's not true. So it was इसलिए that even Joyce Meyer, woman of such stature, तो जब वो preaching से निकले बहुत साल पहले, तो उनको भी बहुत लोग बोले no, you're not supposed to teach. आजकल भी है, stay there. So it's that I love what one woman teacher said. If a woman was about to save somebody from dying from death on the there, that's okay, but you are not supposed to save. मैं अभी जहाँ पर काम करती हूँ ना, तो अभी डिवोर्स होने वाला है, मतलब वो हैप्पी है, लेकिन जो मेरी मैडम है उसका और एक वो है, बॉयफ्रेंड है, तो मतलब उसको कुछ भी चाहिए, उससे पैसे लेने के 5 करोड़, उसने ऑलरेडी उसको 7 करोड़ देने थे, उसने 3 करोड़ दे दिए उसको, 5 करोड़ बाकी उसके घर में बैठी है, लेकिन इतना हंगामा मचा देती। परसों के दिन तो उसने बोला कि मुझे जो मेरी गाड़ी खराब हो गई वो गाड़ी ठीक करके लेके आओ, तो उसने बोला कि 2-3 दिन लगेगा, वो बोली मैं पेट्रोल लेके जाऊंगी, गाड़ी को जलाऊंगी, तब तो मुझे गाड़ी लेके, मतलब इतनी समझ गया, लाउड है और इज्जत नहीं करती। इज्जत क्यों होगी? एग्जैक्टली, आपने सही बोला, एग्जैक्टली बोला आपने, बहुत मैं जाके वहाँ प्रेयर करती हूँ, वेरी गुड, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि जब से आप आई हो आपके सामने झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाती हूँ, मैं वो प्रेयर करती हूँ। मीरा ने एग्जैक्टली क्या बोला, एक सर्टेन टाइप ऑफ विमेन, आई डोंट वांट टू से फॉलन विमेन, जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ विमेन, वो नंबर 1 चर्च के अंदर और इन आदमी को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लाउड बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर इन द चर्च, टू कर्ब दैट, आपने बोला ना, तो आपने चुपचाप रहो, और जो भी डाउट करना, एग्रेसिव लाउड कोर्स विमेन, तो नॉट टू कंडेम देम, उनको they don't know any better, they are coming from that life,
तो जैसे पवित्र आत्मा बढ़ेगा दे विल लर्न, तो उन्होंने लिखा अपने घर में जाके इधर शोर नहीं बचाओ, इट्स अ डिस्टर्बेंस, उसी के लिए खास रखा। लेकिन बहुत सारे चर्चेस को बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बनाया है, आर फोकसिंग ऑन दिस, आमेन, एंड आई डू नॉट परमिट एडम Pastor, वाज is it not more of a letter and not the spirit which they are like? they are letter taking kills. the letter, exactly. letter It- kills, yes, right? letter kills, spirit gives life. They are definitely taking the letter. They made such a huge doctrine of it. And somewhere patriarchal mindsets also, they don't like women preachers. I mean, it takes a very confident man to type. A very confident of a working woman, successful woman. So that is, to be understood. They don't like undertones there all over, whether it's the believing world or the world. That mindset is there, but God can change all that. Amen. So आगे पढ़िए. Now this is Timothy is just talking. He's teaching. It's not to show in any way that women are inferior. For Adam was formed first, and then Eve. And Adam was not deceived, but the women being deceived fell into transgression. Nevertheless, she will be saved at the childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control. See, self-control. तो ये पर्टिकुलर विमेन उस चर्च में बहुत लाउड और एग्रेसिव थे, जैसे मीरा ने कहा कुछ औरतें अलग टाइप के लाइफ लेते हैं, तो वो मेन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, एंड दिस इज रॉन्ग, वी मस्ट रिस्पेक्ट मैन, लाउड कोर्स बिहेवियर, तो वो गलत था, कलीसिया के अंदर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे। तो इसीलिए खास करके तिमोथेयुस ने कहा ऐसी उनके उनके ड्रेस करने का तरीका भी गलत था। सो इट वॉज पर्टिकुलर, इज कंटेक्चुअल कि ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, जो आपको डाउट है घर जाके इधर इधर शोर नहीं बचा, डिस्टर्बेंस नहीं करो। तो लेकिन बहुत सारे चर्चेस लेके ये डॉक्ट्रिन बनाया है, और वो गलत है, बिकॉज जब प्रभु अभिषेक करता है मैन और वुमन, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। देयर आर माइटी वुमेन प्रीचर्स यूज्ड माइटली बाय द लॉर्ड टू सेव एंड टीच एवरीबॉडी, बिकॉज बिफोर गॉड वी आर नॉट। सो these are all part and parcel of walking with the Lord. Amen. I'll do it today. So meditate on it. Amen. I'll do it next time. God bless each one of you. तो अगर कोई डाउट है, बहुत सारे कुछ पूछना है, यू कैन ऑलवेज टीच, आई टीच यू। एंड ये प्रिवेंट टीचर्स के बारे में बहुत कुछ है, मैंने बोला ना कि इवन जॉयस मायर स्टिल गेट्स पीपल। I won't name, somebody from the church only came and showed me a lot of crap written about her on. देखो, another thing I want to say, online में जो सक्सेसफुल पास्टर्स प्रीचर्स हैं उनके बारे में 100% गलत लिखेंगे। Man, it could be Kenneth Copeland, Joyce Meyer, anybody. There's a lot of trash and crash on online. उनके बारे में गलत लिखते हैं। Even I got so much. Somebody was asking me about anointed people of God. क्योंकि it comes from hidden jealousy and bitterness. Amen. कि उनके लिए गलत है, उन लोग गलत तरीके से ये किया है, ये गलत पैसा इधर यूज कर रहा है, he has a private aircraft. अरे Kenneth Copeland has a private aircraft. Do you know what he has sown into the ministry? He has sold his house and he sold his इतने घर। प्रभु ने क्या कहा? There's nobody who has not given father, mother, brother, houses and inheritance to God, who will not receive 100 times more in this earth, along with persecution, which he is receiving, and life eternal to come. So कोई भी godly man or women के लिए गलत online 100% you will get crap. Don't go into that area because it will psych you. That is satanic. It's a spirit of Jezebel. Amen. Whatever it is, God says, don't judge my servant. जो whoever's right and wrong, they stand before God. आप अपनी जिंदगी जीको, मगर at the same time जो आप preaching सुनते हैं, आप पवित्र आत्मा की घर से जो प्रभु की तरफ से glean लो, and what is not from the Lord, एवरीबडी आपकी खुद की आत्मा की एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो आपको एक डिसर्नमेंट है और एक वॉचमैन आपको बताएगा ये सही है। सो नो दैट ये एक्सट्रीम, टू एक्सट्रीम्स, लीगलिज्म और लॉलेसनेस, इसके बीच में बहुत ही मतलब सब कुछ करके हम माफ होता है, सब कोई कार्नल लाइफ जी सकते हैं, यू आर स्टिल सेव्ड, and the other one is rigidity or rites and rituals and laws and rules and laws to get into heaven. Both are wrong. It's a mid walk. It's a balance of the Holy Spirit in every situation and your own connect with the Holy Spirit. There are some things that are broad conviction, there are some personal convictions. Amen. In every situation, Pavitra Atma आपको answer दे देंगे. But nevertheless, हमको अगर कोई है, we have to bless everybody and hear and glean. आपके लिए जो अच्छा है वो receive करना चाहिए. Take it to prayer. जब आप खुद प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको कोई डाउट है, ये pastors always there to help you, but spend that quiet time with the Lord, because I am here as a pointer for Christ.
Amen? मेरी सबसे बड़ी मकसद है कि आप एक एक करके हमारे लोग जो इस कमरे में बैठे जो सुन रहे हैं वो नहीं सुने हैं, आप सबकी खुद की रिलेशनशिप प्रभु के साथ. God is not a collective relationship, but it's an individual relationship. और वो रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी दुनिया में, आपकी दुनिया, and that will lead and guide you. Amen. God bless each one of you. Amen. Each one. Amen. Thank you. Now I'll pray for your needs. Amen. Khatun aunty, Yes. family salvation. Lord, we pray for Khatun. Thank you, Lord, कि उनकी पूरी परिवार, उनकी मरियम, मुस्तफा, उन दोनों के बीच में मोहब्बत और प्यार आए, पैसे की लालच निकले, खुदा का डर आए प्रभु, हर घर में यूनिटी आए, हर घर में जो दीवारें हैं अलग का, जो प्रॉपर्टी का हर चीज अलग हो प्रभु, और जैसे खातून उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मे दे नो द ट्रू एंड लिविंग गॉड, उनकी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन प्रभु यीशु को जाने प्रभु, और डॉक्टर रिहाना को हीलिंग मिले, उनके भाई पूरी फैमिली सेव्ड हो, and keep Khatun healthy and strong till the end of time. Amen. Khatun, Ekta has a prayer request. Yeah. I'm asking her to unmute. Yeah, Ekta, please unmute and you can talk. Yeah, praise the Lord, Poniji. Yeah, praise the Lord. Okay, I want to take prayer for 3 things. Yeah. First of all, I'm not keeping well. मेरा पैर में भी जलन शुरू हो रही है, जल रहा है पैर. है ना? Secondly, आप जो मेट्रो बोल रहे थे ना, अंडरग्राउंड मेट्रो, वो हाँ. हमारी प्रॉपर्टी से लग के जा रही है. हाँ? आप द क्यूब में आते थे ना, प्रेयर मीटिंग में द क्यूब, और अंधेरी इस प्रॉपर्टी से लग के जाएंगे. हाँ, प्रॉपर्टी की बात बोल रहे थे ना, अंडरग्राउंड मेट्रो जा रही है, तो उसके हाँ. लिए प्रेयर करना कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है अंधेरी ईस्ट में, हाँ. एंड वो डीपी रूल के लिए रुका हुआ है. डीपी रूल मीन्स डेवलपमेंट प्लान जो होता है ना, उसके लिए हाँ. रुका हुआ है. तो अभी ये मेट्रो 2024 में आने वाला था. अब जो भी रूल आएगा तो आप जरा प्रे कीजिए, अच्छा रूल आएगा, रेसिडेंशियल कमर्शियल आएगा तो जो डीपी प्लान आता है ना, डेवलपमेंट प्लान, तो वी कैन डेवलप ओवर देयर. Okay. एंड थर्ड, तुषार और इज्जत के लिए जरा प्रे करना, रोज उनका थोड़ा चल रहा है क्योंकि इज्जत डजंट स्लीप ऑन टाइम. शी स्लीप्स एट 1 o'clock. शी हैज टू गो टू स्कूल टुमारो ना, नेक्स्ट मॉर्निंग. ये टीचर ना, तो फिर आके थक जाती है, फिर कुछ ना कुछ उनका दोनों का चलता है. जस्ट कीप दैट आल्सो इन प्रेयर. Yeah, I've been praying for Tushar. Lord, we just give Ekta into your precious hands, Lord. Is right now, touch her, Father. Heal that infection in her stomach. By your stripes, she's healed. Complete healing to flow through her. In Jesus' precious name. This one, no, the Karishma, she should also take prayer. I pray, Father Lord, right now जो मेट्रो जो अंडरग्राउंड होने वाला है प्रभु, उनकी प्रॉपर्टी को लहू से ढक दो प्रभु. And I pray, command every force of darkness that is coming against that. And I pray that it go for redevelopment, Sita's place, this place, सारे जहाँ रीडेवलप की जरूरत है प्रभु, जल्दी से जल्द सही टाइम पे सही डेवलपर्स डेवलप करे प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं तुषार के घर में शांति आ जाए प्रभु. Lord, take him into the closet of fasting and praying, Father Lord, that peace come in that home. I pray for just salvation. I pray for Payal and her husband, Father Lord, your salvation to come into Devesh's life, Father Lord, as सब लोग will come into the closet कि हफ्ते में एक बार fast and pray करें अपनी spouses के लिए, अपनी unsafe families के लिए. Keep Epta strong and salvation for all her brothers, her sisters, heal her brother from Huntington's disease and her sister-in-law, Lord, we cry out for salvation, Father. इतनी दिक्कत है प्रभु, इतनी दर्द है प्रभु, फिर भी प्रभु उनका दिल प्रभु are not sucked towards Christ, Father. I take authority, I rebuke every power of darkness. I pray, Father, Lord, as Ekta's crying out and fasting and praying, soften their hearts, Lord. Make a way that Christ will be revealed to them. Make them hungry and thirsty for you. You alone can put that hunger in their hearts, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. When Vijay Kumar, pray for his hand, and then pray for his wife, pray for children and family and business. And brother for IBP to come down. His विजय कुमार भाई brother. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि विजय कुमार की बीपी बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, उनकी वाइफ की पाइल्स की बीमारी के हील हो जाए प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं उनकी जो भी उनकी डैड की बिजनेस को सफल हो जाए प्रभु, जो दसवांश भेंट देते हैं प्रभु, दे विल गेट सैल्वेशन, फादर लॉर्ड. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो उनकी घर में क्लेश उखाड़ दो प्रभु, लहू से ढक दो प्रभु, salvation come to their home. And I pray that everybody will start reading the word and praying every day, and your salvation come to each one of them. Amen. Then Asha aunty, pray for the finances to improve and family service.
Yes, I pray for Rohan, I pray for Mitali, I pray for Kiran, Father, fear of God in every one of them. As she is fasting and praying, Father Lord, हर शैतानी ताकत उस घर से उखाड़ दो. Christ be revealed to every one of them, Lord. That heaven and hell revelation come to everyone. कि ये 2 दिन की रौनक मेले में और शैतान की शिकंजे से उखाड़ दो प्रभु. तो जल्दी आने वाला है प्रभु. So many sports people and players are proclaiming Christ from public sports fields, Father. What an awesome thing, Father Lord. I pray Christ will come to every one of them. I pray, Father Lord, even that all of them will be saved, Father Lord. And I pray all of financial situation improve. She's a tither, she's the offerer, and she also helps our people, God, with salvation. And I pray, Father, your mighty hand on her. In Jesus' name we pray. Amen. I pray for Charlogy. I pray for the little one, Father, Lord, complete healing of the little Mowgli. I pray he'll be a quiet child. He will not trouble. He'll grow up to be a quiet child, and she'll be able to enjoy him. Bless Charlogy, keep him in your presence, and may she know the true and living God. I pray, Father Lord, and I pray for own house for Charlogy. और सब के जिनकी खुद की जरूरत है प्रभु. I pray for restoration of all the lost sheep, शारदा, अर्शदा, so many of them, जिनका खुद का घर सबको मिले प्रभु, जो दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं प्रभु. Release their own houses, Father Lord. We don't know how you're going to do it, Lord. Maybe the loan system, what is going to change, Father? सबको खुद का घर मिले, and they will walk with you diligently in Jesus' name. Amen. Amen. Huh? Yeah, yeah. It takes too long. Just tell her to. It takes too long. Tell her to text it. Then you read the prayer. I read. Read. Praise the Lord, Master. Charlogy wants to speak. Praise the Lord, Master. Anita, बोलो. मास्टर प्रे कर दीजिए वो लोन कर्जा हट जाए पूरा और घर सेल हो जाए बदलापुर का और सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, इवेंजलिज्म भी कर सकूं मैं. तो बहुत टेंशन है, तो प्रभु शांति रखे और मेरा विश्वास और बढ़े प्रभु में. इवेंजेलिकल गिफ्ट है प्रभु, बहुत आगे. और जहां जहां प्रभु टर्न अबाउट टर्न लेना है प्रभु जिंदगी में, वो अबाउट टर्न लेंगे. आप अगर कोई भी चीज इसके बारे में बोल रहा है कि यहाँ बदलाव लेके आना, वहां बदलाव लेके आएंगे प्रभु. इनके थ्रू पूरी फैमिली बच गए प्रभु. और जहां फैमिली अभी तक नहीं बचे, वो भी सैल्वेशन आए सबके पास. अब प्रार्थना करते हैं उनके हस्बैंड की सैल्वेशन के लिए. हम नहीं जानते कब क्या होगा, लेकिन एज शी इज प्रेइंग डिलिजेंटली यू विल रिवील क्राइस्ट टू हिम. और हम प्रार्थना करते हैं बिजनेस को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु. अगर तेरी इच्छा है प्रभु, उनका अच्छे दाम में वो बिके प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दिनों के बीच में यूनिटी आए प्रभु, और क्लेश निकले प्रभु. एंड यू अलोन कैन ब्रिंग दैट यूनिटी. एंड आई क्लेम फॉर अ हाउस वेयर द ब्रेथरन dwell together in unity. जहां भाई ये इकट्ठा रहता है प्रभु, सारे प्रार्थनाओं को उत्तर बिना पूछे मांगे आता है. ये आदेश है प्रभु. और सबके जिंदगी में प्रभु यूनिटी आए प्रभु, यूनिटी इन फैमिलीज. एंड लेट ब्लेस evangelical gift and use her mightily, Father. Give her peace that passeth all understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Godly wisdom, family salvation in business. Yes, Lord. I pray a business पास तो word आया था तेरे दास को प्रभु कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा. लहू से ठग तो प्रभु, वो दशांश देती है, भेंट देती है, तेरे राज्य का काम करती है प्रभु. और हम प्रार्थना तेरी बुद्धि समझ और ज्ञान में बढ़े प्रभु. उनके बेटे के salvation के लिए हम प्रार्थना करता है. Many people's children are going to know the Lord soon. I pray, Father, your spirit will reveal, Father Lord, to them and never give up. I pray for our youth, Namrata's friends, Anishka, and I pray for at this time for Mangal. I pray for all the people, Father. I pray for Nisha. ये सारे बच्चे strong हो प्रभु में, अंगद, अभिषा, और हम प्रार्थना करते तारा, ईशा, and हम प्रार्थना godly spouses for all those of marriageable age, Father. सुनील, हम प्रार्थना करते मन्नू, जो भी शैतान के शिकंजे से उखाड़ दे प्रभु, सारा ल्यूकवार्मनेस निकाल दो प्रभु, गुनगुनापन निकाल दो प्रभु. खुदा का डर आए सबके अंदर प्रभु, क्योंकि with fear of God there is no progress in our life. सब लोग प्रभु brood over them. Christ will reveal to every one of them. सब लोग वचन पढ़े और प्रार्थना करे प्रभु. गलत लाइफस्टाइल से निकले, एडिक्शन से निकले, गलत फ्रेंड से निकले, राहों से निकले. I rebuke the liar, deceiver, and devourer from our youth, and I speak, Lord, as Ezekiel chapter 37 says, Father Lord, that I speak to the valley of dead bones, where there is death and desolate. I speak a spiritful youth, all the names that I have not taken to, godly spouses for every one of them, Lord, godly destinies, Father, where they have married unsaved people like Payal and Tushar, Father. I pray for the salvation. As they go on their knees and pray, Father, I believe salvation will come both of them, Father Lord. You will reveal Christ to them. And those who are going to marry will have married godly spouses, Father Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Then- I pray for even our nieces, nephews, families, जहाँ सबकी salvation हो प्रभु, और सब लोग कोई waste time नहीं करे प्रभु, रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, सबके दिल के अंदर बोझ डाले कि वो अपने families के लिए प्रार्थना करे. धन्यवाद यीशु. Then Rakesh, pray for his wife, family salvation business. हम प्रार्थना करते हैं उनकी वाइफ और फैमिली में शांति आए प्रभु, अच्छी फैमिली है प्रभु, सब लोग तो रास्ता बनाए कि सब लोग आए संडे को, चारों बच्चों की प्रभु वो अच्छा परवरिश हो यीशु में. हम प्रार्थना करते हैं कि राकेश चारों बच्चों को लेके आओ संडे. ओके, ब्रिंग देम. क्यों नहीं लेके आ रहा है? जो जल्दी आए तो ठीक है, क्यों बात हुआ? संडे रिक्शा में बिठा के लेके आओ. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू इवन हेल्पिंग ओवर देयर. उनकी वचन सुनना और उनकी उधार वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है देन यू कमिंग एंड हेल्पिंग. हम प्रार्थना करते सारे बच्चों को लेके आए प्रभु, तो हम मिलते हैं रफली अबाउट ट्वाइस अ मंथ. इनको सैल्वेशन की बहुत जरूरत है प्रभु, एक्सपोजर टू गॉड्स प्रेजेंस एंड वर्ड. और हम प्रार्थना करते हैं फिर से संडे स्कूल शुरू हो जाए, गॉडली टीचर्स कमिटेड. आई रिब्यूक द ल्यूकवार्मनेस, ये गुनगुनापन निकाल दो प्रभु, फिर से तेरी हवा बहुत तेजी से चलने दो प्रभु, और सबकी जिंदगी से उखाड़ दो जो आपके नहीं है, और जो नहीं उखाड़े वो डीप रूटेड हो, स्ट्रॉन्ग बने प्रभु, यीशु मसीह के नाम से. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. Amen. And Richard, for complete supernatural healing of her mother. Yeah, I pray that his mom, Father, you have shown wonderful grace and mercy for her, Father Lord. Complete healing for her. I rebuke the bed sores, every weakness in our body, every cell, tissue, organ will function in the perfection to which God created to function. Give Richard great faith. May he also make a desire and make a way that he can come on Sunday. And I pray, Father Lord, for a complete healing of Surekha, Father, of all her RA, Father Lord, a wonderful miracle. And may she also stand on her legs and do the work of God. I pray, Father Lord, for Jemima's healing completely. Yes, Lord. Change what needs to be changed will come, Father. Karishma's healing, Father Lord. Help her to hold on to the word of God. Pavitra Vachan pe. Let her come closer to the Lord and have the faith that your word will heal her. All unnecessary things and procedures away from her womb and her life, Father Lord. Thank you, Jesus. Amen. Done. Okay. आप प्रार्थना करते, don't worry. यहाँ के लोग प्रार्थना करते. कल what time is it? 6, 6:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग है. पास्टर परमजीत लेगा अभी. I think very soon वो फ्लैश सब जगह पहुंचे हैं. Everybody join in, tell others too. There's somebody, I think, from outstation, somebody from Canada is be going there. Tiwari ji will be there. Mighty things will happen. Please join the online meeting कल 6:30 बजे. जहां भी है कोई भी hindrance में ये online का what do you call that? Net का कोई hindrance ना हो प्रभु. All powers and principalities are there. We bind it in Jesus' name. Let your spirit move in a mighty way. कल nation prayer भी श्रद्धा से करो और Sunday मिलेंगे करमवीर हॉल में 4 बजे. Amen. Call others. Be blessed. Invite others. And also there will be Karishma wants to give meal to the whole. Karishma, आप लोग सब करिश्मे के लिए बहुत प्रार्थना किया. So she is organizing a dinner for everybody. Amen. सबके लिए प्लीज कम एंड बी ब्लेस्ड. दूसरों को लेके आइए, दूसरों को हेल्थ से बचाइए, दूसरों को मौत से बचाइए, दूसरों को अंधकार से बचाइए. And make a way that your fire comes and everyone will bring new people in. In Jesus' name. I cover everything with the blood of Jesus. Amen. Amen. God bless. Great things are happening. Yes, Charlie, you wanted to speak? No, thank you, Pastor Moni. Thank you so Thank you, much. Pastor. Please, anyone? Amen. This is it's going to be a blessing to you. Lord, we pray for Sunday. Every power of darkness that will come against them, we rebuke in Jesus' name. Bless Devendra, Father, the fear of God in him. And I pray, whatever that needs to be changed, you will change in him. Thakur, Father, Lord, salvation come to him and all the staff there. And हम जानते हैं प्रभु, जब से 8 साल पहले मुझे ये हॉल दिया था, तब कोई नहीं जानते थे बैंक्वेट हॉल कितना सक्सेसफुल हो गया है. और हम लोग भी वो ग्रांटेड ना ले प्रभु. हाउसकीपिंग फैसिलिटीज सबको ब्लेस कीजिए प्रभु. कोई दिक्कत, बहुत ही महान कर वहां प्रभु. पवित्र 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 स्थान है. जो दूर गए प्रभु, गुनगुना हो गए प्रभु, सबको वापस लेके आए प्रभु. वो जुनून और जोश वापस लेके आए प्रभु. फिर से स्थापित कीजिए. और हम प्रार्थना करते हैं, डिक्लेयर फादर लॉर्ड Ezekiel chapter 7 that a spirit-filled flourishing church and you will build the church. आप ये फिर से कलीसिया बांधेंगे और शैतान की कोई भी ताकत और औकात आसपास नहीं आएंगे. तेरे दास पास्टर परमजीत, the main thing, will pray for him, Father Lord. उनका दर्शन, उनकी अभिषेक, उनका जोश, उनकी हर प्रार्थना जो पहले से तय करके स्वर्ग में लिखा, उनको जन्म होने से पहले हर कुजे, हर मीटिंग जो आपके थ्रू, उनके थ्रू आपको करना है, तेरे राज्य का काम,
हर शैतानी ताकत कोई भी आसपास ना आए प्रभु. You will restore and you will regenerate and anoint the man of God for whatever he is ordained and called to. Bless Abu, her worship. I cover with the blood of Jesus. पूरी नजर से और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु that whatever plan and purpose for her, you will fulfill it, Father Lord. Restore her passion, her joy, whatever that you have. Let all of us be found obedient to Angad to, Father Lord. हर कोई, all the straying children, all of them will come back because you're looking for one person to stand in the gap. एक जन भी खड़ा होकर बीच में खड़ा हो तो वापस लेके आएगा. तो इतना महान परमेश्वर है. हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पीएम कैबिनेट के लिए, ऑपोजिशन पे कोई लहू से ढक दो प्रभु. ऑल फॉल्स न्यूज, रैबल राउजिंग, प्रोपेगेंडा मीडिया को खाड़ दो. खुदा का डर डाल दीजिए ऑपोजिशन के ऊपर और रूलिंग पार्टी के ऊपर, ताकि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी इच्छा के बराबर सब कुछ हो. जब छिपी हुई चीजें, हर चीज, हर झूठ, हर सामने आए प्रभु, एंड राइटली विल बी डेल्ट विथ लॉर्ड. और हम प्रार्थना करते हैं, आज हमने लिटरली पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी वे प्रेड फॉर द अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट्स एंड रूल ओवर यू. लेट ऑल द पुअर, हमारे देश में हर कोई मेहनत करे प्रभु और ईमानदार रहे प्रभु, और मेहनत का फल सबको मिले प्रभु. हर चीटिंग, लाइंग, करप्शन भी रूट आउट लॉर्ड. और सब लोग जहां काम करते हैं अपनी बॉसेस के लिए प्रार्थना करें प्रभु. और हम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी मिले, कोई मिडिलमैन बीच में ना आए प्रभु. बीएमसी को खुदा का डर डाल दीजिए प्रभु. जहां जहां गार्बेज नहीं क्लियर हुआ है और जहां जहां प्रभु वाटर लॉगिंग है प्रभु, खुदा का डर डाल दीजिए प्रभु कि जल्दी से जल्द सब वो ठीक हो जाए. वो बिल्ड रोड्स विद द फियर ऑफ गॉड, द फियर ऑफ गॉड फादर लॉर्ड. जहां ब्रिजेस की जरूरत है, मड और यहाँ वर्सोवा के ब्रिज जल्दी आए प्रभु. एंड आई एम प्रेइंग एवरीवन विल गेट देयर ओन हाउस, और हर घर में यूनिटी आ जाए. जो दीवारें शैतान ने खड़ा कर दिया प्रभु, खाड़ दो यीशु मसीह के नाम से. और हर घर में एक जन भी बीच में खड़ा होकर प्रार्थना करे प्रभु, और प्रभु का प्यार, प्रभु का मोहब्बत, प्रभु का पैशन और जुनून और प्रभु का भूख सबके अंदर डालो. बिकॉज यू लुकिंग फॉर दैट वन पर्सन टू स्टैंड इन द गैप एंड यू विल आंसर देयर प्रेयर्स. हमारे बच्चे जो दूर गए वापस आए प्रभु. जो चले पहले आते थे बंद हो गए प्रभु, वो शैतान की शिकंजे और दुनिया में खोए वापस आए प्रभु. और जब मिल के प्रार्थना करते तो महान कार्य करेंगे. सबको keep them in your presence, keep them in your power, keep them in your glory, and once again God's put in my heart own houses for everybody. Own, सबको good own houses in Jesus' name. Amen. God bless each one of you. Have a happy again. Bless each one of you. Amen. Thank you, Lord.